Hi, so today we'll be doing division of labor given by Emile Durkheim. So let's get started. Now, division of labor is splitting of an activity into a number of parts or smaller processes. This is division of labor, which means एक बड़े काम को smaller parts में divide करना so that the work could be done or completed in a smooth manner with efficiency. Another definition is that it is an economic concept where the task is broken down into smaller tasks to achieve better efficiency. Now, according to Durkheim, division of labor is material social fact. Division of labor is material social fact. Now, what social fact is? Social fact is those ways of acting, thinking or behaving in society which are external to an individual's mind and is endowed with the power of coercion. Alright, now social fact are of four types: normal social fact, pathological social fact, material social fact and non-material social fact. Material social fact because it is external in nature and it is coercive in nature. Moving on, division of labor. It is because of division of labor that interdependency has increased. People are interdependent upon each other for the fulfillment of their needs. And because of this interdependency, the unity in society has increased. And because of both these factors, social solidarity has increased in society. Moving on, primitive society versus modern society. Primitive society is collectivity plus common norms and values, minimum division of labor, or we can say no division of labor. प्रिमिटिव सोसाइटी में कलेक्टिविज्म पे सोसाइटी बेस्ड थी, कॉमन कस्टम्स, कॉमन ट्रेडिशंस, कॉमन वैल्यूज बेस्ड ऑन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जहां पे डिवीजन ऑफ लेबर या तो आप मिनिमम बोल सकते हो या बोल सकते हो कि डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट ही नहीं करता था. मॉडर्न सोसाइटी में इंडिविजुअलिज्म ज्यादा है, स्पेशलाइजेशन है, डिवीजन ऑफ लेबर इज हाईली कॉम्प्लेक्स. मतलब मॉडर्न सोसाइटी में पीपल चूज देयर ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज. And because of this, specialization has increased and division of labor is increased. Now, there is a link between division of labor and social solidarity. Durkheim has explained primitive society and modern society with his theory of social solidarity. Primitive society is mechanical solidarity, is governed by mechanical solidarity, or we can say primitive society is characterized by mechanical solidarity. Modern society is characterized by organic solidarity. Now, what is mechanical solidarity and what is organic solidarity? Mechanical solidarity is like it exists in those societies which are based upon similarities. They are bound by collective consciousness, common traditions, common customs, common values, common norms of the society. यहाँ पे रिप्रेसिव टाइप ऑफ लॉज होते थे. रिप्रेसिव टाइप ऑफ लॉज मतलब ऐसी सोसाइटी अगर कोई क्राइम हो रहा है किसी के अगेंस्ट, तो दैट क्राइम यूज टू बी कंसिडर्ड अगेंस्ट द एंटायर कम्युनिटी, नॉट अगेंस्ट दैट सिंगल इंडिविजुअल, बिकॉज द सोसाइटी वॉज बेस्ड अपॉन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. एंड सो द पनिशमेंट वॉज ऑल्सो गिवन publicly and the punishment used to be very harsh and brutal, either capital punishment or social mockery. Now, capital punishment or social mockery in the sense the person, the individual, the criminal, उसका मुंह काला करके he used to be seated on a donkey और उसको पूरे विलेज में उसे घुमाया करते. That is social mockery. Moving on, organic solidarity. Organic solidarity exists in those type of societies which are based upon differences. यहाँ पे again जो लोग होते हैं they choose their occupation according to their interest, according to their capabilities. यहाँ पे restitutive type of law आता है. Restitutive type of law ये होता है जहाँ पे जो victim होता है उसको compensate किया जाता है. मतलब जो guilty होता है, जो accused, जो guilty, जो criminal होता है, he compensate to the victim either in the form of the compensation, या तो कोई छोटा मोटा फाइन देके कंपनसेशन देके, या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर ए स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा कुछ करके वो विक्टिम को कंपनसेट करता है. मूविंग ऑन, जो सोशल सॉलिडारिटी थ्योरी है डर्कहाइम की, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फर्डिनेंड स्टोनीज थ्योरी ऑफ जेमिनी शेफ्ट एंड जेशल शेफ्ट. जेमिनी शेफ्ट के ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, जेशल शेफ्ट के ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है. जेमिनी शेफ्ट इज बेसिकली योर मैकेनिकल सॉलिडारिटी एंड जेशल शेफ्ट इज बेसिकली योर ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी. जेमिनी शेफ्ट में अगर हम बात करें, हमारे पास कलेक्टिविज्म है, स्मॉल ग्रुप होता है, जो सोसाइटी होती है, जो कम्युनिटी होता है वो होमोजीनियस होता है, पर्सनल रिलेशंस होते हैं,
इनफॉर्मल, जब पर्सनल है तो ऑब्वियसली इनफॉर्मल चीज, इनफॉर्मल होगा सोसाइटी। इनफॉर्मल है तो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, जो सोशल कंट्रोल है उसका कोई ऐसा सोशल एजेंसी नहीं थी कंट्रोल करने के लिए, जैसे पुलिस हो गया, लॉ हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। मूविंग ऑन, जो ओनरशिप थी प्रॉपर्टी की, दैट वॉज कलेक्टिव, ठीक है, क्योंकि होमोजेनिटी था, कलेक्टिविज्म था, स्मॉल ग्रुप था। इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल एंड जो डिफरेंशिएशन, जो डिविजन ऑफ लेबर था, वो बहुत ही मिनिमम था। मूविंग ऑन, जेशल शिफ्ट। जेशल शिफ्ट में इंडिविजुअलिज्म, दिस इज ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी इज मॉडर्न सोसाइटी। तो यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म है, लार्ज ग्रुप्स है, हेट्रोजीनियस, ऑब्वियसली सोसाइटी इज हेट्रोजीनियस। यहाँ पे इम्पर्सनल सोसाइटी है, सोसाइटी इज नॉट पर्सनल, बहुत ही फॉर्मल है, बहुत ही इम्पर्सनल सोसाइटी है, ठीक है। प्राइवेट ओनरशिप, यहाँ पे आपको कोई भी कलेक्टिव ओनरशिप प्रॉपर्टी की देखने को नहीं मिलेगी आज की सोसाइटी में, इट इज प्राइवेट ओनरशिप। Formal social control, today we have law, today we have police, today we have constitution, today we have government to control the behavior of people. So, formal social control. Obviously, differentiation is very high, maximum division of labor, complex society. Alright, moving on, Emile Durkheim has also given a concept of abnormal division of labor. Now, abnormal division of labor को Emile Durkheim ने pathological social fact में रखा है। पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट में रखते हुए उन्होंने बताया एबनॉर्मल डिविजन ऑफ लेबर को ही फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज पुअरली कोऑर्डिनेटेड, सेकंड इज फोर्स्ड डिविजन ऑफ लेबर एंड थर्ड इज एनोमिक डिविजन ऑफ लेबर। पुअरली कोऑर्डिनेटेड डिविजन ऑफ लेबर में क्या होता है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे जो वर्क रेप्लीकेट जाता है, वर्क रेप्लीकेशन ऑफ वर्क, इट लीड्स टू पुअरली कोऑर्डिनेटेड डिविजन ऑफ लेबर। फोर्स डिविजन ऑफ लेबर, अगर आपको इनहेरिटेंट, मतलब इनहेरिटेंस से चीजें मिल रही है, मतलब कोई चीजें चली आ रही है और जैसे किसी फादर है तो जो उनका जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी कंपनी है, जो भी कुछ है, वो उनके बेटे को मिलेगा, दैट इज इनहेरेंट, राइट। तो उसकी वजह से फोर्स डिविजन ऑफ लेबर आता है। एनोमिक डिविजन ऑफ लेबर ये होता है जहां पे लोग जो लोग होते हैं वो काफी कंफ्यूज होते हैं, दे आर कंफ्यूज कि हमारा रोल क्या है, तुम्हारा रोल क्या है, दे आर कंफ्यूज अमंग देयर रोल्स, कि एक सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इंडिविजुअल का रोल क्या है, वो अपने रोल में ही कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि इतनी ज्यादा डिविजन ऑफ लेबर होती है। सो इट लीड्स टू एनोमिक डिविजन ऑफ लेबर। नाउ वी हैव क्रिटिसिज्म ऑफ डिविजन ऑफ लेबर ऑफ थ्योरी गिवन बाय इमाइल डर्कहाइम। क्रिटिसिज्म हमें देते हैं कार्ल मार्क्स और एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है हमारे पास। मार्क्स कहते हैं कि जो डिविजन ऑफ लेबर है, इट इज गुड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट इन द लॉन्ग रन इट विल लीड टू एलियनेशन अमंग द वर्कफोर्स। एलियनेशन कैसे हो जाएगा? लोग अपना अपना काम करते रहेंगे, तो वो बहुत अकेले हो जाएंगे। इट विल लीड टू एलियनेशन, इट विल लीड टू आइसोलेशन अमंग द वर्कफोर्स। इनोवेशन बहुत ही कम हो जाएगा क्योंकि पता है लोगों को कि हमें बस यही करना है, हमारा उस काम से कोई लेना देना नहीं है, तो इनोवेशन विल डिक्रीज। इनएफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा एट टाइम व्हेन द डिविजन ऑफ लेबर इज एट इट्स पीक, तो इनएफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगा, इनएफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा। डीस्केलिंग ऑफ पीपल, ठीक है। मूविंग ऑन टू द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ये कहता है डिविजन ऑफ लेबर को लेके कि जो भी डिविजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट है वो सिर्फ इसलिए ताकि जो बर्डन है पूरा काम का, इकोनॉमिक वर्कफोर्स का जो भी बर्डन है वो सारा विमेन पे आ जाए। सो दिस इज इट फॉर डिविजन ऑफ लेबर। थैंक यू।